میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے شمال میں واقع ایک ملک کی، جو کہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس میں کل 30 کروڑ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ روس کے زوال کے بعد جب سرد جنگ ختم ہوئی تو یہ دنیا کا واحد ملک تھا جو کہ عالمی طاقت کے طور پر ظاہر ہوا، اور اب یہ ملک دنیا بھر کے تمام ممالک میں کھلم کھلا مداخلت کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ کریں گے جو کہ یقیناً آپ کے علم میں پہلے نہ ہوں گی۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ امریکہ۔ امریکہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، یو ایس اے، دی یو ایس اے، دی یو ایس آف اے، دی اسٹیٹس اور امریکہ شامل ہیں۔ امریکہ لفظ کا استعمال پہلی بار 1507 میں ہوا جب جرمن نقشہ ساز نے گلوب بنا کر جنوب اور شمال امریکی براعظموں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نام کا استعمال کیا۔ امریکہ کو کولمبس کے حوالے سے کولمبیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور 20ویں صدی کے شروع تک امریکہ کے دارالحکومت کو کولمبیا ہی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اس نام کے استعمال کو ختم کیا گیا، لیکن ابھی بھی سیاسی طور پر کولمبیا کا نام استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ کو 4 جولائی 1766 میں سرکاری طور پر آزاد کیا گیا۔ امریکہ کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مشرق میں بحیرہ اوقیانوس اور مغرب میں بحر الکاہل واقع ہے۔ امریکہ ایک وفاقی آئینی ریاست ہے اور اس کا دارالحکومت واشنگٹن ہے۔ امریکہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو 5 صدیاں قبل تک ساری مشرقی دنیا یعنی براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیائی مغربی نصف کرہ کے ممالک امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے وجود سے بالکل بے خبر تھے۔ 12 اکتوبر 1992 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب بہاماس پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر یہ کسی یورپی کا پہلا قدم تھا۔ 1524 عیسوی میں فرانسیسی مہم جو گیوانی ویریزونا ایک مہم لے کر کیرولائنا سے شمال کی طرف بڑھتا ہوا نیو یارک میں داخل ہوا۔ اس کے بعد 1579 عیسوی میں فرانسس ڈریک مغربی ساحل پر سین فرانسسکو کے خلیج میں داخل ہوا اور ایک برطانوی نو آبادی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح 1607 عیسوی میں کیپٹن جان سمتھ 3 جہازوں میں 105 سپاہی لے کر ورجینیا کے ساحل پر اترا اور جیمز ٹاؤن کے نام سے پہلی برطانوی نو آبادی قائم کی۔ 1624 عیسوی میں البانیا اور نیو یارک کے علاقوں میں ویلندیزی نو آبادیاں نیو نیدرلینڈز کے نام سے قائم ہوئیں۔ 1 دسمبر 1660 کو برطانوی پارلیمان نے جہاز رانی کا قانون، جسے نیویگیشن ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، پاس کیا، جس میں نو آبادیات کے ساتھ تجارت کو اپنے مفادات کے مطابق ضابطوں کا پابند بنایا گیا۔ 8 ستمبر 1664 عیسوی کو برطانوی فوجی دوستوں نے نیو نیدرلینڈز پر قبضہ کر لیا، اور پھر 1676 عیسوی میں نتھانیل بیکن نے برطانوی آمریت کے خلاف کسانوں کی بغاوت کی قیادت کی، اور جیسے ہی بیکن کا انتقال ہوا یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور بیکن کے 23 ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور ایسے ہی پھر 6 اپریل 1712 عیسوی کو نیو یارک میں غلاموں نے بغاوت کر دی۔ ان باغیوں میں سے 21 کو قتل کر دیا گیا، 6 نے خودکشی کر لی، جبکہ 71 کو ملک سے بدر کر دیا گیا۔ 1770 عیسوی میں برطانوی دوستوں نے بوسٹن میں مظاہرہ کرنے والے ایک ہجوم پر گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں 5 آدمی ہلاک ہوئے، جن میں مظاہرین کا لیڈر بھی شامل تھا، اور اس واقعے کو بوسٹن کا قتل عام یعنی بوسٹن میسکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔
फिर 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में पहली बरे-आज़मी कॉन्फ्रेंस यानी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मुनक्किद हुई, जिसमें बरे-आज़मी हुकूमतों के खिलाफ शहरी अदम ताउन यानी सिविल डिसओबीडियंस की करारदाद मंजूर हुई। 23 मार्च 1775 ईस्वी को वर्जीनिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए पैट्रिक हेनरी ने यह तारीखी अल्फाज कहे, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, यानी मुझे आज़ादी दो या फिर मौत दे दो। 2 जुलाई को ये करारदाद मंजूर हुई और 4 जुलाई को ऐलान खुद मुख्तारी यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत हुए। और फिर दिन आते हैं मार्च 1782 ईस्वी के, जब बरतानवी काबीना ने अमेरिका की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। और फिर 1779 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन 1796 ईस्वी में इस ओहदे से रिटायर हो गए। ये अमेरिका के अजीम तरीन रहनुमा थे और इस इनकलाबी कायल के सामने वाज़े मंजिल यानी अपने मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी थी। वो इस मंजिल की तरफ साबित कदमी से बढ़ते रहे और आज हम देख रहे हैं कि ऐलान खुद मुख्तारी के कई साल बाद तरक्की और तामीर की तमाम मंजिलें तय करके अमेरिका दुनिया में एक सुपर पावर बन चुका है और ताजे बरतानिया के किए गए मुजालिम का बदला बेगुनाह मुसलमानों से ले रहा। यहाँ के रकबे और आबादी की बात की जाए तो अमेरिका का कुल रकबा 37,96,742 मुरबा किलोमीटर है और इसका 6.97% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। कुल रकबे के लिहाज से अमेरिका को दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है और इनफरादी रकबे के लिहाज से भी रूस और कनाडा के बाद इसका तीसरा नंबर है। अमेरिका में इस वक्त कुल 32,71,67,434 लोग आबाद हैं। बात की जाए खारजी ताल्लुकात और अफवाज की तो अमेरिका का दुनिया भर में वसी माशी, सियासी और फौजी असर होने की वजह से इसकी खारजा पॉलिसियाँ दुनिया भर में मुबाहिसों का एक पसंदीदा मौजू है। तकरीबन तमाम ममालिक के सफारत खाने वाशिंगटन DC में मौजूद हैं और कौंसल खाने मुल्क भर में अलग अलग जगह पर कायम किए गए हैं। अमेरिका में फ़ौजी मामलात में शहरी कंट्रोल की तवील रिवायत मौजूद है। दूसरे ममालिक की तरह यहाँ के महकमा दिफा का काम भी अपनी मुसल्लह अफवाज को संभालना है, जो कि बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज पर मुश्तमिल है। अमरीकी फ़ौज में 14 लाख अफराद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कई लाख मजीद अफराद रिज़र्व और नेशनल गार्ड्स की सूरत में मौजूद हैं। अमेरिका की फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फ़ौज है और इसी तरह इसका बजट भी दुनिया की तमाम अफवाज से कई गुना ज़्यादा है। अमरीकी अफवाज का बजट 2005 में अमरीका के बाद आने वाले 14 ममालिक के फ़ौजी बजट से ज़्यादा था। मज़े की बात तो ये है कि अमरीका का फ़ौजी बजट कुल मुल्की आमदनी का सिर्फ 4% है, जिससे ये पता चलता है कि ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर होगा। अमरीकी अफवाज के ज़ेरे इंतज़ाम 700 से ज़ायद मराकज़ हैं और अंटार्कटिका की सर्द दुनिया के हर बर्रे आज़म में भी इनके फ़ौजी मराकज़ मौजूद हैं। मईशत की बात की जाए तो अमेरिका की मईशत की तारीख दरअसल एक कहानी है जो नौआबादियाती निज़ाम की माशी तरक्की से शुरू हुई और तरक्की करके अब 20वीं और 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी माशी और सनती ताकत बन गई है। अमेरिका का माशी निज़ाम मखलूत सरमायादाराना माशी निज़ाम है, जिसमें कारपोरेशन, प्राइवेट फर्म्स और बहुत से अफराद मिलकर ज़्यादातर माइक्रो इकनॉमिक फ़ैसले करते हैं और हुकूमत इस सतह पर ज़्यादा मुदाखलत नहीं करती। ताहम मजमूए की हैसियत से तमाम सतहों पर हुकूमत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में औसत घरेलू आमदनी $46,326 सालाना है और 25 से 64 साल की उम्र के अफराद की औसत सालाना इनफरादी आमदनी $32,611 है। अमरीकी मईशत का ज़्यादातर हिस्सा खिदमात से हासिल होता है, जहाँ कुल अफराद का 3/4 हिस्सा काम करता है। सनती जवाल की वजह से 2011 में 22 मिलियन अफराद हुकूमत के मुलाजिम थे और सनाई में 11 मिलियन, जबकि 1660 में सूरत हाल इससे बरक्स थी। इस मुल्क की मईशत का कुछ हिस्सा कुदरती ज़राए जैसा कि कोयला, तेल और कुदरती गैस पर भी इन्हसार करता है। ताहम अभी तक ये मुल्क अपनी तवानाई के हवाले से दूसरे ममालिक पर इन्हसार करता है। ज़राअत में मकई, सूरजमुखी, चावल और गंदम की पैदावार के लिए ये मुल्क पहले नंबर पर शुमार होता है। अमेरिका में सयाहत की काफ़ी वसी सनतें मौजूद हैं और ये दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा हवाई जहाज़, स्टील, हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत की बरामद के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा है।
कनाडा अमेरिका की बैरूनी तिजारत में 19% के साथ पहले नंबर पे है। इसके बाद चीन, मैक्सिको और जापान वगैरह शामिल हैं। अमेरिका की फीकस आमदनी का शुमार दुनिया की सबसे ज़्यादा आमदनियों में भी होता है। ज़राए नकलो हमल की बात की जाए तो अमेरिका में ऑटोमोबाइल की सनत का आगाज़ दूसरे तमाम ममालिक की निस्बत पहले किया गया। 2004 में लिए गए डाटा के मुताबिक अमेरिका में 39,82,521 मील यानी 64,07,637 किलोमीटर लंबी सड़कें मौजूद हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका का रेलवे निज़ाम दूसरे तमाम ममालिक की निस्बत बड़ा है। लंबे फासले के लिए मुसाफिर हवाई सफ़र को तरजीह देते हैं। मुसाफिरों की तादाद के लिहाज से 2004 में दुनिया के 30 मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से अमेरिका 17वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि सामान की मुंतकिली के हवाले से दुनिया में 12वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका में बहुत सी मसरूफ़ तरीन बंदरगाहें भी मौजूद हैं। जोग्राफी और मौसम की बात की जाए तो अमेरिका में आम दरख्त और घास के मैदान मशरिक की तरफ पाए जाते हैं, जिनको बतदरीज मैदानों में तब्दील किया जा रहा है। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस जंगलात और पहाड़ मगरिब की जानिब वाक़या हैं, जबकि जनूब मगरिब में सहरा वाक़या है। अपने बड़े और वसी रकबे की वजह से अमेरिका में हर तरह का मौसम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इलाके मोतदिल ही रहते हैं। खेलों पर रोशनी डाली जाए तो अमेरिका में खेल मुल्क की तफरीह का ज़रिया है। अमेरिका में फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अमेरिका में एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुआवजा भी यहाँ खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। बेसबॉल को कौमी खेल का दर्जा हासिल है, लेकिन 1990 ईस्वी की दिहाई के शुरू से अमेरिकन फुटबॉल को ज़्यादा शोहरत मिली है। अमेरिका की कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। इसके अलावा मज़ाहब की बात की जाए तो यहाँ पर 73.7% मसीह, 18.2% गैर मुत्तफिक, 2.1% यहूदी, 0.8% मुस्लिम, 2.5% दीगर और 2.6% नामालूम लोग रहते हैं। यहाँ के मौजूदा सदर का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइविंग दाईं तरफ की जाती है और यहाँ की करेंसी US डॉलर है। यहाँ का इंटरनेट डोमेन .us है और यहाँ का कॉलिंग कोड +1 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।